नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर जिले के अर्थशास्त्र अध्यापक संघ की ओर से पत्रिका भवन में प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक के राजा राजेश्वरी नगर के भाजपा विधायक मुनिरत्न के खिलाफ एक और एफआईआर, दुष्कर्म यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज। कर्नाटक के भाजपा नेता शोभा करंदलाजे और आर अशोक के खिलाफ केस दर्ज। नागमंगला हिंसा पर विवादित टिप्पणी करने का है आरोप। जहीराबाद में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मिलाद कमेटी की ओर से 7 मुस्लिम जोड़ों की कराई गई शादी। कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक, पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के अर्थशास्त्र अध्यापक संघ की ओर से पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में संबोधित करते हुए बीदर जिले में अर्थशास्त्र अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयकुमार शिंदे और अन्य ने संबोधित किया। इस अवसर पर गोविंद जाधव, सुचितानंद एम मलकापुरे, सुनील कुमार मूलगे, अश्विन एल चौहान, विकास पोस्तार के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಬರಬರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿತು, ಅಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲ್ಲೆಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಮಾಡಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಘನತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಣತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಷಯನಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ನಾವು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸುಮಾರು 2010ದಾಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಕೈ ಚಾಲಕನ ತೋರಿಸಿ ಅವರೇ ತನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮೆಮೊರಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 5 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರಿಣಿತ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, PG 2 ವರ್ಷ, ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, 5 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಯಾರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ BCom ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಓದ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಓದ್ಲಾರ್ದೇ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಲಯ ವರದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಲಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಲಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ VC-ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಂದ ಕರೆದು ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು PhD ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾತ್ರ, PhD ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬಿಸಲಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. 18/7/2024 ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ BCom ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಇರ್ತದೆ, 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಿಂದ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಓದಿನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ನಡನೂ ಓದಿನಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಯಾರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಕುಲಪತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಒಂದು BOC ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದರು. ದಿನಾಂಕ ಅವರು 26/8/2024 ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕುಲಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ನೀವೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೂಡಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕುಲಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವರು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಒಂದು ಆದೇಶ ಹಾಕ್ತಾರೆ 28/8/2024 ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು 2 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಲೆಬಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 3 ಪೇಪರ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. 5-5-5 15 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, 5 ಗಂಟೆದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಯಾವ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಸುಗಮವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1-2 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಹ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನಡುವೆ ಈಗೇನು ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಾವು ಸಲೀಸಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ भाल की तहसील कार्यालय के पीछे बने सार्वजनिक शौचालय का उपयोग नहीं होने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। यह सार्वजनिक शौचालय भाल की तहसील कार्यालय के पीछे सरकारी थिएटर के बगल में सरकारी पुस्तकालय के पीछे बनाया गया है और शौचालय को भीड़ भाड़ वाली जगह पर भारी हालत में देखा जा सकता है। सरकारी काम से आने वाली जनता को शौचालय की सुविधा नहीं मिल रही है। इस सुविधा के चारों ओर कंटीली झाड़ियां हैं। संबंधित अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस सार्वजनिक शौचालय को दोबारा उपयोग के लायक बनाना चाहिए। कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर के भाजपा विधायक मणिरत्ना के खिलाफ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। मामला रामनगर जिले के कगल्लीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। शिकायत के मुताबिक घटना कगल्लीपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक निजी रिसोर्ट में हुई। विधायक मणिरत्ना समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि भाजपा विधायक मणिरत्ना और 6 अन्य के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है। मामला 40 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि घटना कगल्लीपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक निजी रिसोर्ट में हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें बुधवार रात को एक शिकायत मिली और उसके आधार पर हमने भाजपा विधायक सहित 7 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश, ताक झांक, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कर्नाटक के नागमंगला में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प के बाद विवादित टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मांड्या जिले में एक 45 वर्षीय पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर भाजपा नेताओं पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में अघोषित आपातकाल है और उन्होंने सीएम सिद्धरामैया को
हिटलर के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अघोषित आपातकाल है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धरामैया हिटलर बन गए हैं। भाजपा सांसदों और विधायकों पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही दक्षिण बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई की। इसमें उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायालय 27 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा, तब तक अंतिम आदेश जारी रहेगा। दरअसल येदियुरप्पा की अर्जी के अलावा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली परिषद ने हाईकोर्ट से अंतरिम संरक्षण को मंजूरी देने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करनी है। येदियुरप्पा ने हाईकोर्ट में अपील की है कि इस मामले को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ अपराध के साबित करने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल एक महिला ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के पूर्व सीएम ने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। एक दुर्लभ घटना में कर्नाटक के मंगलूर के कन्नीगोली इलाके में 2 सिर वाले एक बछड़े का जन्म हुआ। बछड़ा जिसने स्थानीय लोगों और पशु चिकित्सकों का ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान में अच्छे स्वास्थ्य में है, हालांकि इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जयराम जोगी, जिनकी गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, ने कहा कि बछड़े का जन्म मंगलवार 17 सितंबर को हुआ था और गाय ने बछड़े को अस्वीकार नहीं किया है। हालांकि बछड़े ने अभी तक गाय का दूध पीना शुरू नहीं किया है और उसे दूध पिलाने वाली बोतल से दूध पिलाया जा रहा है। पशु चिकित्सक सूत्रों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से बछड़ा पॉलीसेफली नामक स्थिति प्रदर्शित करता है। इस विशेष बछड़े के 2 सिर एक साथ जुड़े हुए हैं और शरीर एक ही है। इसकी 4 आंखें हैं, लेकिन केवल बाहरी 2 ही काम करती हैं। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मिलाद कमेटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 7 मुस्लिम जोड़ों की शादियां कराई गई। इस अवसर पर मिलाद कमेटी ने पूर्व मंत्री और प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर टीएस, आईडीसी पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, डॉक्टर उज्जवल रेड्डी, अथर गौरी, जमील बरकत, डीएसपी राममोहन रेड्डी, सीआई शिवलिंगम, एसआई काशीनाथ, ग्रामीण एसआई प्रसाद राव का स्वागत किया। निकाह की कार्यवाही काजी सैयद जियाउद्दीन खतीब ईदगाह ने की। मिलाद विवाह समिति ने सभी को बधाई दी और सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सलमान हैदर ने भी शादी में उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रेसिडेंट गोरे मियां सिकंदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 12 साल से इसी तरह की सेवा की जा रही है। इस वर्ष भी अभी तक कुल 81 शादियों की गई हैं। इस अवसर पर शेख जहांगीर, खलील, अजहर, वसीम, मोइन, रफी, जुनैद, नसीर और इमरान मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। आज मिलाद के दिन आज जो शादियों का मुस्तहिक लड़कियों की शादियों का एहतमाम किया गया था और अच्छे तरीके से हो गया है। इंशाअल्लाह हर साल भी 12 साल से एक सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा, आगे भी और शानदार से शानदार तरीके से करेंगे। आज 7 अक़्द हुए हैं। अब तक के 12 साल से 4 हुए थे, ये 7 81 हुए हैं आज तक के। इंशाअल्लाह इस वजह से हमारी टीम जो बच्चे हैं हमारे साथ देने वाले और जो इसमें मेहनत किए हैं, जो ताउन किए हैं या मदद किए हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे बच्चे जो है मोइन, जहांगीर भाई और वसीम, अजहर, ये सब लोग हैं जुनैद, ये सब मिलजुल के काम करने से ये आज जो प्रोग्राम कामयाब हुआ है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इतना कहते हुए मैं तकरीर को ख़त्म करता हूँ। मैं ईदगाह मैं शेख जहांगीर मिलाद कमेटी सदर
आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छे से अच्छा पैमाने पे जो काम हुआ है उसका, जो भी हजरात है उनका जो इसमें काम किए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख अजरुद्दीन अज़हर साहब, गोरे भाई सिकंदर साहब, मोइन और वसीम अकरम और खलील साहब सब मिलकर ये काम को अंजाम दिए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शादियाँ जिसके जिसके हुए हैं मैं मुबारकबाद देता हूँ। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े दर्जनों लोगों ने जिला बदायूं की तहसील इस्लामनगर में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा वाल्मीकि शमशान की भूमि पर कब्जा किए जाने के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा और भूमि को मुक्त करने की मांग की। इस मामले में जानकारी देते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया कि जिला बदायूं की तहसील इस्लामनगर में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा वाल्मीकि शमशान की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। कब्जा करने वाले लोगों में लतीफ पुत्र साजिद अपने साथियों के साथ मिलकर वहां के क्षेत्रीय पुलिस थाना प्रभारी से हमसाज होकर वाल्मीकि समाज को हड़का रहे हैं तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दरोगा का यह कहना है कि किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, जिससे आहत होकर मुरादाबाद के भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजकर बदायूं की तहसील इस्लामनगर थाने में तैनात दरोगा के खिलाफ और शमशान की भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, इस्लामनगर थाना डिस्ट्रिक्ट बदायूं में शमशान घाट पर हनीफ सनफ मजीद बाल्मियों के शमशान घाट पर कब्जा करना चाहते हैं। उसमें हरेंद्र कोतवाल जो इस्लामनगर के मुरादाबाद भी रह गए हैं, वो धरने वालों के लिए देखो अब शब्द बोल रहे हैं और कह रहे हैं सालों इतना मारूंगा कि हवाई जहाज बना दूंगा। मुझे तो अफसोस है कि इतने बड़े कारीगर को पुलिस में रख छोड़ा, हवाई जहाज बनवाए बदायूं में मुरादाबाद में। यार इतने बड़े मैकेनिक को यार हवाई जहाज जो बना रहे हैं उनसे क्या काम लिया जाए? हवाई जहाज बनवाए ना, एक मुझे बनवा दें, उन्हें थाने से हटाया जाए, ओवरकास्ट किया जाए। ऐसा हवाई जहाज यार बनाने लगा है ऐसा कोतवाल हमारे उत्तर प्रदेश में। हमें तो यार बड़ा वो है कि वाल्मीकि को हवाई जहाज बना दे, 2-4 यहाँ के ही बना जाए। जमीन कहाँ पर है? कितनी जमीन है? देखिए, मरघट है पूरा, कई बीघे जमीन है। मैं वहाँ होके आया हूँ, वहाँ धरने इस्लामनगर थाना इस्लामनगर डिस्ट्रिक्ट बदायूं में है, मेन रोड पे है। तो वो अपनी जो हनीफ हैं वो वहाँ मार्केट बनानी चाहते हैं। अब जब धरने पे बैठ गए लोग तो वो दबाव दे रहे हैं हरेंद्र कोतवाल की, उससे हरेंद्र जो कोतवाल है वो उन्हें तरह तरह की गाली बकरियां है, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से क्या? हाँ, मैं यही मांग है कि हरेंद्र को बर्खास्त किया जाए और उनसे कहो कि वाल्मीकि को हवाई जहाज ना बना। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही मची हुई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। करीब 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 46 लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच अडानी ग्रुप आंध्र प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों की मदद के लिए आगे आया है। अडानी ग्रुप ने बाढ़ राहत कोष में 25 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इससे बाढ़ से प्रभावित लोगों ने पुनर्वास में मदद मिलेगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। गौतम अडानी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान से बेहद परेशान है। इस मुश्किल घड़ी में अडानी ग्रुप आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा है। 25 करोड़ रुपए के योगदान के साथ अडानी फाउंडेशन के जरिए हम विनम्रता पूर्वक अपना समर्थन देते हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में ऐसा बयान दे दिया है जिसकी भारत में भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने के बयान देने के बाद कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडे भी। गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हैं और हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे। एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसीलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद। प्रधानमंत्री मोदी के तोहफों की नीलामी शुरू हो चुकी है। अक्टूबर तक चलने वाली इस नीलामी में उनके 600 से ज्यादा गिफ्ट्स आप भी खरीद सकते हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से नीलामी में शामिल होकर दुनिया भर से मिले उनके उपहारों को खरीदने के लिए बोली लगाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी को मिले उपहारों के साथ ही मिले हुए स्मृति चिन्हों की भी नीलामी होनी है। पीएम मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ये नीलामी मंगलवार को शुरू हुई थी, जो कि 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय 600 से ज्यादा उपहारों और स्मृति चिन्हों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। नीलामी के लिए इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा गया है। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर FIR दर्ज की है। कांग्रेस नेता द्वारा विधायक यत्नाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 1992, 1996, 353(2) के तहत शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कराई गई है। यह शिकायत महासचिव S मनोहर ने बुधवार को हाई ग्राउंड थाने में दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने पुलिस से विधायक यत्नाल को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। मनोहर ने अपनी शिकायत में कहा कि मीडिया से बात करते हुए विधायक यत्नाल ने पूछा गया था कि राहुल गांधी किस जाति के हैं, क्या उनका जन्म मुस्लिम से हुआ था या ईसाई से या हिंदू ब्राह्मण से, उनके माता पिता अलग अलग धर्मों से हैं, उनकी मां इटाली से हैं और उनके पिता मुगल हैं। मनोहर ने कहा कि विधायक यत्नाल ने हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मों का जिक्र करके राहुल गांधी और उनके परिवार की उत्पत्ति को अपमानित किया है। यत्नाल ने मांग की थी कि राहुल गांधी की असली वंशावली की पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के अर्थशास्त्र अध्यापक संघ की ओर से पत्रिका भवन में प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर के भाजपा विधायक मुनिरत्न के खिलाफ एक और FIR, दुष्कर्म यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज। कर्नाटक के भाजपा नेता शोभा करंदलाजे और RSO के खिलाफ केस दर्ज। नागमंगला हिंसा पर विवादित टिप्पणी करने का है आरोप। जहीराबाद में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मिलाद कमेटी की ओर से 7 मुस्लिम जोड़ों की कराई गई शादी। कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक, पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।